Aligarh. Sir, you are not audible. Ayaz sir, Now, am I audible? now you are. Okay. Dr. Akbar Hussain retired as professor from the Department of Psychology. He was chairman, Department of Psychology, and the Dean, Faculty of Social Sciences, Aligarh Muslim University, Aligarh. Professor received his PhD degree in psychology from the Aligarh Muslim University, Aligarh, in the year 1981. Professor Hussain was awarded the D.Litt. degree in psychology in the year 2015 for his work on explorations and applications of spirituality in psychology. He has over 41 years of teaching and research experience. He has successfully supervised 7 postdoctoral theses, 38 PhD theses, and 10 MPhil dissertations at the Aligarh Muslim University, Aligarh. He has co-authored and edited 45 books and contributed to 90 research papers, theoretical articles, and books chapters in national and international journals and books. Professor Hussain has attended and presented papers, gave invited talk, lectures, and keynote addresses in the several national and international conferences and seminars. He was editor of the Journal of the Indian Academy of Applied Psychology from 2002 to 2005 and Journal of Educational Research, University of Malaya, 2009. Professor Hussain is also reviewer of various national and international journals of psychology. He has standardized numerous psychological tests and completed research projects. He is a life member and annual member of various national and international associations. He has visited several countries for attending conferences and teaching assignments. He is also on the editorial board of several prestigious journals, both national and international. Professor Hussain received Sir Syed Innovation Award in the year 2018, Outstanding Researchers of the Year. In recent years, he has been involved in conducting the researches on various topics such as spiritual values, virtues, and personality, social support, religious, spirituals, coping, standardization of holistic well-being scale, bliss scale, etc., related to the area of spiritual and positive psychology. Professor Hussain developed a number of theoretical models and psychological tests, which focuses on understanding and measuring the Muslim scholars, measuring the phenomena of spirituality. He was influenced by writing of some of the Indian Muslim scholars, theologians, and philosophers who had contributed in the field of Islamic psychology and spirituality. They were the models of the best of the human nature. In addition to this, his current areas of research are health psychology, positive and spiritual psychology, psychological testing, and Islamic psychology and counseling. Professor Akbar Hussain is here today to deliver a lecture on role of counseling in dealing with mental health problems. With this couplet, I would like to hand over mic to Professor Akbar Hussain Saab. अब जो आ रहे हैं हमें उन पर मान है, अब जो आ रहे हैं हमें उन पर मान है, बजाइएगा जरा तालियां अगर हाथों में जान है. Hand over mic to Professor Akbar Hussain Saab. Okay. Assalamu alaikum. Good evening to
every participant. At the outside, I would like to thank to Mr. Rafiq Mohammad, Director, Bharat Digital Academy, for giving me an opportunity to deliver a lecture on the topic that is role of counseling in dealing with mental health problems. So in this topic, basically, my focus would be on uh, the role of the counselor as well as teacher, how in dealing with mental health problems. So, frankly speaking, a number of mental health problems which have been cropped up during COVID-19, like anxiety, depression, stress. So these are the certain internalizing mental health problems and certain psycho social problems like loneliness, feeling of insecurity, alienation. So, of course, in this respect, first I would like to tell you the importance of counseling, what our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said about counseling. He said, "Take it as none of you should act without consulting. Nothing is easy, but what you make easy." Similarly, Imam Hassan also said, "Only those who have sought counsel have found their path." Yani it means counseling is very much needed. Like the country, like in United States of America, where the mental illness and mental health problems in every, I mean, one person, one case in every five individual they suffered from or need counseling services. So similarly, Imam Ali said, consult before deciding and think before acting. Good behavior is honorable in the sight of God, not pretty speech. No one is needless of guidance. One who does not work to heal oneself will find that this malady will grow. The treatment will be more of struggle and he will find no cure. So always consult with the wise and experienced in order to be safe from regret and mistakes. So here I would like to say that the role of the counselor as well the teacher is very important in dealing with it. So first I would like to tell you in brief what is counseling. तो काउंसलिंग जो है एफर्ट है टू हेल्प द क्लाइंट engage those types of behavior which will I lead to a resolution of the client's problem. तो कहते हैं ये काउंसलिंग में क्या होता है इंटरेक्टिव प्रोसेस है यहाँ पे इंटरेक्शन होता है काउंसलर एंड काउंसली का तो यह ऑफ कोर्स द काउंसलर इज वन हु इज ट्रेन्ड एंड एजुकेट टू गिव दिस असिस्टेंस मतलब करने को तो करते हैं बताते हैं लेकिन वो काउंसलिंग नहीं है बेसिकली वो गाइडेंस है जो लेमैन लोग प्रोवाइड करते हैं तो इन दिस रिस्पेक्ट देयर इज a counseling is always conducted in the so-called the four-wall room situation where there is a presence of a counselor and counselee. जब ब्रिटिश साइकोलॉजी एसोसिएशन काउंसलिंग साइकोलॉजी को बताया उन्होंने कि काउंसलिंग इज द स्किल्ड एंड प्रिंसिपल्ड यूज ऑफ रिलेशनशिप to facilitate self-knowledge, emotional acceptance, and growth, and the development of personal resources. तो ओवरऑल एम जो होता है हमारा टू वर्क टुवर्ड्स मोर सेटिस्फाइंग एंड रिसोर्सफुल तो काउंसलिंग रिलेशनशिप जो है कंसल्ट करती है डेवलपमेंटल इश्यूज है एड्रेसिंग रिजॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है मेकिंग डिसीजंस है कोपिंग विद क्राइसिस है developing personal insight and knowledge है working through of inner conflict and improving relationship with others. तो इसी तरह से डिफिनीशंस हैं बहुत तो हम वहाँ पे इतना ज़्यादा एम्फेसिस नहीं देना चाहते हैं बल्कि हम बताना चाहते हैं तो गवर्निंग काउंसलिंग ने बताया कि एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ है साइकोलॉजिकल और ह्यूमन डेवलपमेंट प्रिंसिपल तो हम लोग जो अप्रोच काउंसलिंग में यूज़ करते हैं कॉग्निटिव अप्रोचेस करते हैं इफेक्टिव करते हैं बिहेवियरल करते हैं सिस्टेमिक इंटरवेंशंस करते हैं और रिलीजियस काउंसलिंग भी करते हैं स्पिरिचुअल काउंसलिंग भी करते हैं डीलिंग विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स or for the purpose of the personal growth, career development, as well as in alleviating mental health problems.
तो अब बहुत सी पॉइंट्स हैं, सर्टेन पॉइंट्स। तो अब कहते हैं काउंसलिंग क्या है, बहुत से लोग समझते हैं। तो देखिए, इट इज़ अ प्रोफेशन है, और काउंसलिंग में हम डील करते हैं पर्सनल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, वोकेशनल प्रॉब्लम्स, एम्पावरमेंट एंड एजुकेशनल कंसर्न्स। ये हमारा कंसर्न रहता है। अच्छा, और बियॉन्ड दिस, काउंसलिंग इज कंडक्टेड विद पर्सन्स हु आर कंसीडर्ड टू फंक्शंस विद इन नॉर्मल डे। जिनके बियॉन्ड, यानी कि जैसे सो कॉल्ड नॉर्मल पर्सन जिनको हम कहते हैं, यानी कि अबव द एवरेज, जिनको प्रॉब्लम्स हो, सीवियर प्रॉब्लम, तो उनको काउंसलिंग नहीं की जा सकती। उनको मतलब दे आर सपोज टू कंसल्ट द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन ऑर्डर टू कोप विद देयर प्रॉब्लम। जिनकी प्रॉब्लम विद इन नॉर्मल रेंज है। तो यहाँ पे खास तौर से हमने जैसे जैसे अभी आपको बताया था कि ये एड्रेस करती है वोकेशनल एरियाज में, हमें एडजस्टमेंट में है। तो ये क्या है, काउंसलिंग इज ए स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी है, और इज अ थ्योरी बेस्ड एंड टेक्स प्लेस इन स्ट्रक्चर्ड सेटिंग। अब स्ट्रक्चर्ड सेटिंग कौन सी होती है, जहाँ पे काउंसलर और काउंसली है, जहाँ आपके इंडिविजुअल अगर काउंसलिंग सेशन है, और जहाँ ग्रुप काउंसलिंग होती है, तो वहाँ पे देर इज अ वन काउंसलर, एक काउंसलर होता, और नंबर ऑफ पर्सन सर्व एज ए काउंसली। तो काउंसलिंग इज अ प्रोसेस इन विच क्लाइंट्स लर्न हाउ टू मेक डिसीजन and formulate new ways of behaving, feeling and thinking। तो इसके बहुत सी हमारी स्पेशलिटीज भी, काउंसलिंग इनकम्पासेस वेरियस सब स्पेशलिटीज। जैसे हमने आपको भी बताया, रिलीजियस काउंसलिंग होती है, बिहेवियरल काउंसलिंग होती है, कॉग्निटिव है, और आपके स्पिरिचुअल काउंसलिंग होती है। नंबर ऑफ स्पेशलिटीज आर देयर। ग्रुप काउंसलिंग होती है, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग होती है, सिस्टमेटिक काउंसलिंग है। अच्छा, तो हर काउंसलिंग का कुछ गोल्स भी होते हैं। तो देखिए, एक तो हमारा गोल होता है, तो मेनली गोल्स का मसला होता है कि हेल्प करते हैं इम्प्लिसिट इंसाइट डेवलप कैसे करें इंडिविजुअल को। तो द एक्विजिशन ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल डिफिकल्टीज लीडिंग टू एन इंक्रीज्ड कैपेसिटी टू टेक रेशनल कंट्रोल ओवर फीलिंग्स। तो यानी कि फ्राइडियन टर्म में कहते हैं वेयर इड वाज। इड के मतलब होते हैं इड इज इनेट, इनबॉर्न एंड शेल ईगो बी, यानी कि रियलिस्टिक इंसान को कैसे बनाया, यानी कि देयर इज ए रिवर्सल or transverse from id to ego। तो द गोल ओवरलैप्स विद द गोल ऑफ साइकोएनालिटिक थेरेपी। तो ये हमने जैसे साइकोएनालिटिक थेरेपी के टर्म में आपको बताया। और फिर क्या, एम्पावरमेंट गोल हमारा। तो उसमें हम स्किल्स को, अवेयरनेस को, नॉलेज दैट विल इनेबल द क्लाइंट टू टेक कंट्रोल ऑफ हिज हर ओन लाइफ। तो यहाँ क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ कोपिंग। कि हम कोई भी प्रॉब्लम आ गई कि अरे भाई हम कैसे कोप क्या करना, तो हम लोग एकदम सरेंडर कर जाते हैं, है ना। तो वो यहाँ पे हमें काउंसलर सजेस्ट करता है वेज के दैट हाउ यू कैन कंट्रोल थ्रू योर ओन आई मीन स्ट्रेंथ्स। तो रिलेट, फिर बात आती है रिलेटिंग विद अदर्स। तो बिकमिंग बेटर एबल टू फॉर्म मेंटेन मीनिंगफुल एंड सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप विद अदर पीपल, फॉर एग्जांपल विद इन द फैमिली और वर्क प्लेस। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, कनेक्टेडनेस होना चाहिए हमारे अंदर दूसरे के लिए। और जस्ट फिर सेल्फ अवेयरनेस हो, बिकमिंग अ मोर अवेयर ऑफ थॉट्स है, फीलिंग दैट हैड बीन ब्लॉक्ड ऑफ और डिनाइड, एंड डेवलपिंग अ मोर एक्यूरेट सेंस ऑफ हाउ सेल्फ इज परसीव्ड बाय अदर्स। तो बहुत से लोग आते हैं, अक्सर हम लोग हैं दूसरों के बाद दूसरा क्या कह रहा है, मतलब लेकिन आपका अपना खुद परसेप्शन होना चाहिए कि आप क्या फील करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मतलब वो whether you can deal with those problems or not। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है कि हम सॉल्यूशन का स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनको हमें कैसे करना चाहिए। तो जनरल कॉम्पिटेंस हो इंसान के अंदर डेवलप हो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। होती है कॉम्पिटेंस हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन हम लोग क्या उनके बारे में अवेयर नहीं होते कि हाउ टू डील विद दोज प्रॉब्लम्स। फिर एक्विजिशन ऑफ सोशल स्किल्स, learning and master social interpersonal skills such as maintenance of eye contact है,
टर्निंग टेकिंग इन कन्वर्सेशंस है, असर्टिवनेस है, एंगर कंट्रोल कैसे किया जाए। तो ये भी बहुत ज़रूरी है इंसान को, जो हम काउंसलर बताता है, या व्हेन द टीचर प्लेज अ रोल एज ए काउंसलर इन द स्कूल सेटिंग। तो इसी तरह सेल्फ एक्सेप्टेंस क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, marked by an ability to acknowledge areas of experience that had been the subject of self-criticism and rejection। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन कैसे हो इंसान का, यानी कि पोटेंशियल, और कि हमारे जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्ट्स हैं ऑफ सेल्फ के, जैसे मसलन होता है अप्रोच टू अप्रोच मोटिव है, या अप्रोच टू अवॉइडेंस मोटिवेशन है, तो उनको कैसे हम इंटीग्रेट कैसे करें, मतलब हाउ टू फुलफिल, और व्हाट पर्टिकुलर डायरेक्शन इज टू बी, पाथ इज टू बी अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दोस कॉन्फ्लिक्ट्स एरियाज के, कैसे इस तरह कॉग्निटिव चेंज है। तो बहुत से लोगों के अंदर होता है कि इरेशनल बिलीफ्स हैं, डेवलप हो जाते हैं, और माल एडाप्टिव थॉट पैटर्न्स हो जाते हैं जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में। अब जैसे अभी कोरोना कोविड के दौर पे था, तो अब क्या हुआ कि माल एडाप्टिव थॉट पैटर्न्स डेवलप हो गए, यानी कि ऑब्सेसिव ऑब्सेशन डेवलप हो गया इंसानों के अंदर, कि बार बार हाथ को धोना, समझे। और अच्छा, कुछ लोगों के मतलब दे अडॉप्टेड इट इज ए रिजिड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर भी हो गया, मतलब उनके अंदर चेंज नहीं आ पाया इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर। तो कहते हैं बिहेवियर चेंज भी जरूरी है, मॉडिफिकेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ माल एडाप्टिव और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर है। तो उसमें क्या है, जैसे कि एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं, एग्रेशन है, वायलेंस है। तो उसकी वजह से तो वो क्या है, काउंसलर सजेस्ट करता है बेस के हाउ टू डील विद दोस प्रॉब्लम्स इफ द काउंसलर इज अनअवेयर अबाउट दोस। फिर सिस्टेमिक चेंज है, तो अब जैसे इंट्रोड्यूसिंग चेंज इनटू द वे इन द सोशल सिस्टम, एग्जांपल फैमिलीज ऑपरेट। अब जैसे सिस्टेमिक चेंज बताया गया यहाँ पे हम लोगों को कोविड-19 में बताया गया कि भाई फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, तो इट इज रिक्वायर्ड। अब इस तरह इमोशनल चेंज भी है कि काउंसलिंग हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग नेगेटिव इमोशंस like anger, sadness, guilt, effectively to facilitate their adaptive expression। तो ये नेगेटिव इमोशंस क्या है, ये सब मैटर अनहेल्दी हैं, सॉरी है, और rather than how these emotions are expressed। तो अप्रोप्रिएट इमोशंस, जैसे खास तौर से हम लोगों क्या है, एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्प्लिट ऑफ माइंड, स्प्लिट ऑफ पर्सनालिटी होती है। अगर आप उनसे, कभी कभी होता है कि आपने कोई उनको न्यूज़ दी कि योर पेरेंट और योर मदर और फादर हैज पास्ड अवे, तो 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 इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग सैडनेस और रादर देन ही मे लाफ, वो हंस सकता है उसके ऊपर बिकॉज ऑफ द पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स। फिर रेस्टिट्यूशन है कि हेल्पिंग द क्लाइंट टू मेक अमेंड्स फॉर प्रीवियस डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। वो ज़रूरी है कि वो उस काउंसलर सजेस्ट करता है कि आपके अंदर अगर एग्रेशन है, वायलेंस है, डिस्ट्रक्टिवनेस है, कि उसको कैसे चेंज करें। फिर स्ट्रेंथ अवेयरनेस है, तो देखिए हर इंसान के अंदर अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, किसी के अंदर रिलीजियस होती है, इमोशनल होती है, फिजिकल होती है, मेंटल है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे क्लाइंट को हम बताते हैं कि विच पर्टिकुलर स्ट्रेंथ मे बी मोर relevant in your case in order to deal with your problems। तो इस तरह जनरेटिविटी एंड सोशल एक्शन, तो इंस्पायरिंग इन द पर्सन ए डिजायर एंड कैपेसिटी टू केयर फॉर अदर्स एंड पास ऑन नॉलेज एंड टू कंट्रीब्यूट टू द कलेक्टिव गुड थ्रू पॉलिटिकल एंगेजमेंट एंड कम्युनिटी वर्क। तो अब ये होता है कभी लोगों को अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जिन्हें नहीं मालूम होता है, तो वो लोग क्या है कि उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, समझे, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस। तो इसमें जब काउंसलर उनको बताता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, हाउ यू कैन यूटिलाइज योर ओन स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू डील विद इन ऑर्डर टू डू द सोशल वर्क और कम्युनिटी वर्क। जैसे वेदांता में कहा जाता है कि लोक समग्रह कि आप सोशल सर्विस कैसे कर सकते हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, गोल। अब कहते हैं कि हु आर काउंसलर्स एंड हेल्पर्स। तो द टर्म helper we use to refer to those teachers who will use counseling skill as part of their work roles. The helper's role is using skills in volunteer and support services. अच्छा, और काउंसलिंग जो है वो यूज होता है स्टूडेंट्स के लिए या क्लाइंट को भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यूज किया कि restricted and teachers whose primary role is teaching but they are also want to engage themselves in voluntary counseling। तो ज़रूरी है खासतौर से इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सेटअप में बहुत ज़रूरी है कि हाउ टू हेल्प स्टूडेंट्स इन मैनेजिंग देयर पर्सनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स, लर्निंग डिफिकल्टीज एंड वोकेशनल चॉइस डिसीजंस। तो यहाँ पे क्या काउंसलर एज ए हेल्पर भी है, और रोल जो है काउंसलर एंड टीचर्स के मतलब टीचर में आल्सो एक्ट एज एन काउंसलर इन एजुकेशनल सेटिंग। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने कुछ कंसर्न शो किए हैं कि हाउ द स्टूडेंट्स माइट शेयर विद देयर टीचर्स और हेल्पर। अब जैसे स्टूडेंट को आए, हो सकता है कह सकता है कि हम आई फील डिप्रेस्ड एंड डू नॉट वांट टू डू एनीथिंग। अब इसने ये बात कही, अब क्यों है? आई एम ए शाई पर्सन एंड वांट टू बी मोर आउटगोइंग। I lose my temper easily. I cannot concentrate properly when I study. I feel stressed because of getting job. बहुत से लोग ये भी हो गए, अरे भाई नौकरी भी मिल गई, अब हम करेंगे क्या, व्हाट आई विल डू। तो ये कंसर्न है जो कि शेयर करना चाहिए काउंसलिंग को मतलब विद टीचर्स और विद द हेल्पर्स और द काउंसलर्स। अब जैसे ये है, आई वांट टू फाइंड ए करियर दैट रियली सूट्स मी, आई वांट टू फिट इन जॉब इन AMU। बहुत से लोगों का है कि भाई पढ़ाई की, हम चाहते हैं यही हम एडजस्ट हो जाए, समझे। तो एंड आई आल्सो डू नॉट वांट टू लूज व्हाट आई वैल्यू अबाउट माय कल्चर। आई वांट टू कीप एक्टिव एंड हैप्पी लाइफ। आई वांट टू गेट मोर इन टच विद माय स्ट्रेंथ एंड बिकम मोर पॉजिटिव। तो देखिए, बहुत से हमारे रेशनल भी बिलीफ्स होते हैं और कुछ इरेशनल बिलीफ्स भी होते हैं इंसान के अंदर। तो वो भी इरेशनल बिलीफ्स भी कभी हमारे अंदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है डेवलप कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी टीचर एज ए काउंसलर या प्रोफेशनल काउंसलर हेल्प करना चाहता है, तो वो क्या कंसर्न होना चाहिए? Counseling professionals who have undergone training on appropriate accredited courses include clinical psychologists, counseling psychologists, psychotherapists, counselors, and psychiatrists, and social workers। तो देखिए यहाँ पे रोल इन लोगों के डिफरेंट हैं। अब जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो इंडिया में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इज वन हु रिसीव्ड MPhil and PhD degree either from NIMHANS, National Institute of Mental Health Neurosciences, Bangalore, or Institute of Psychiatry from Ranchi, or Institute of Human Behavior and Allied Sciences, शाहदरा। तो यहाँ से ट्रेनिंग इनको मिलती है। तो इस तरह से वो ट्रेनिंग एज ए डायग्नोस्टिशियन भी मिल सकती है और एज ए साइकोथेरेपिस्ट भी। अच्छा, काउंसलर्स में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में तो NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग है, या आजकल मास्टर्स डिग्री इग्नू में भी चल रहा है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में, या सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन में भी डिप्लोमा होता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, तो वो वहाँ लेते हैं। अच्छा, फिर इस तरह से साइकेट्रिस्ट, अब साइकेट्रिस्ट है दोज हु कंप्लीट MBBS, after that they do DPM, diploma in psychological medicine। और फिर इस तरह सोशल वर्कर्स है, तो सोशल वर्कर्स भी है, वो भी मास्टर्स वो काउंसलिंग का कोर्सेज पढ़ते हैं, समझे। तो फिर क्या सेकंड में क्या है कि आप कैसे मदद कर सकते हैं? प्रोफेशनल, पैरा प्रोफेशनल, क्वासी काउंसलर्स हु माइट हैव कंसिडरेबल ट्रेनिंग इन काउंसलिंग yet are not accredited as counseling professionals। कि अब क्या हुआ गया, अब जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में तो एक बाकायदा accredited बॉडी है हम लोग इंडिया में, कहलाती है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो उस वो अगर जब तक accredited वो सर्टिफाइड नहीं आप हैं, तो आप
वो लाइसेंस्ड यानी कि कर नहीं सकते आप। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा इंडिया में स्ट्रिक्ट बहुत से वो नहीं है, कहना चाहिए इथिकल गाइडलाइंस। बट एनी हाउ वी हैव a number of such educational institutions who provide this. फिर क्या है, थर्ड है, there are those who use counseling and helping skills as part of their work. यहाँ पे क्या है, वर्क क्या है, रोल क्या है, टीचिंग है, मैनेजिंग है, सुपरवाइजिंग है, प्रोवाइडिंग रिलीजियस सोशल वर्क है, मेडिकल एंड सोशल सपोर्ट सर्विसेज है। तो ये जॉब्स required people to use counsel, some of them they are maximally effective in that. यानी कि क्या है कि आप टीचिंग भी कर सकते हैं, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस है जैसे, और रिलीजियस सोशल, अगर रिलीजियस काउंसलिंग टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं प्रेयर कैसे करो, रीडिंग स्क्रिप्चर इन डीलिंग विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो आपके, या जिक्र है जैसे कहते हैं, रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड है, तो दीज आर द सर्टेन थिंग्स विच आर important. Fourth is voluntary counselors and helpers. The volunteers usually receive training in counseling skills. They may work in settings like youth counseling services and in numerous volunteer agencies that provide invaluable services such as the Samaritans, यानी कि helpers, जो लोग artistic होते हैं, जैसे कि like you can take an example of Mother Teresa. She did not receive any counseling training, but she used to give counseling services in dealing with people's problem. तो ये समरिटेरियंस कहलाते हैं, या इनको आप आर्टिस्टिक पर्सन भी कह सकते हैं आपको। अच्छा, अब क्या मतलब आया कि व्हाट आर बेसिक काउंसलिंग स्किल्स, क्या होना चाहिए आपके अंदर, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कैसे डील करेंगे। तो उस कंटेक्स्ट में आपके अंदर क्या हो, कम्युनिकेशन एक्शन स्किल्स हो, यानी कि उसमें वर्बल मैसेजेस कैसे, मैसेजेस दैट पीपल सेंड विद देयर वर्ड्स, वोकल मैसेजेस दैट पीपल सेंड थ्रू देयर वॉइसेस, फॉर एग्जांपल थ्रू वॉल्यूम, आर्टिकुलेशन, पिच, एम्फेसिस एंड स्पीच रेट। तो कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझे क्या, in order to impress others, in order to deal or understand the people's problems. फिर बॉडी मैसेजेस हैं, यानी कि जिनको हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और बॉडीली कम्युनिकेशन भी कहते हैं, कि आपके गेज कैसे कर रहे हैं, आई कांटेक्ट क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, पोस्चर्स क्या है, जेस्चर्स, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, क्लोजेस एंड ग्रूमिंग कैसे किया। फिर टच मैसेजेस हैं कि स्पेशल कैटेगरी ऑफ बॉडी मैसेजेस, मैसेजेस दैट पीपल सेंड थ्रू टच, थ्रू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट दे यूज, व्हाट पार्ट्स ऑफ अनदर बॉडीज दे touch, how gentle or firm they are, and whether or not they have permission. But taking action messages हैं, messages that people send when they are not face to face with counseling, for example sending letters, emails or invoices. तो ये भी बहुत कहना चाहिए एक तरह का इम्पॉर्टेंट वो है। फिर इस तरह से माइंड स्किल्स है, तो सेंट्रल माइंड स्किल्स में कहते हैं क्रिएट करना है आपको सेल्फ टॉक। बहुत से लोग होते हैं कि बहुत कि बुरा समझते हैं कि आदमी बड़बड़ा रहा है, तो वो भी एक तरह की कैथारसिस होती है कि जब आपके अंदर कोई भी नहीं है, इफ़ यू आर अनेबल टू टेक काउंसलिंग सर्विसेज, और इफ़ यू आर नॉट हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सीकिंग काउंसलिंग सर्विसेज, अगर आपको मतलब नहीं लेना है किसी के, तब भी तो उसमें क्या, यू कैन डू कैथारसिस थ्रू सेल्फ टॉक, यानी कि आप अपने इमोशनल और पेंट अप फीलिंग को रिलीज कर सकते हैं। अगर आप तो क्रिएटिंग इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू देम नेगेटिवली बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्पेस, स्टूडेंट्स कैन एक्नॉलेज व्हाट दे हैव चॉइस एंड मेक कोपिंग सेल्फ स्टेटमेंट। कि मतलब ये है कि हाउ टू स्टे काम है, कूल कैसे रहें, एस्टेब्लिश गोल्स कैसे करें, कोच कैसे करें, व्हाट टू डू, स्ट्रेंथ को कैसे यूटिलाइज करें,
So people can use self-talk to create visual images that support their verbal self image. तो ये बहुत जरूरी है कि माइंड स्किल्स में तीन एक तो क्रिएटिव सेल्फ टॉक है, फिर क्रिएटिंग रूल्स है, यानी कि क्या अनरियलिस्टिक रूल्स होते हैं, इरेशनल डिमांड्स होते हैं अदर, जैसे बहुत से लोग आई मस्ट ऑलवेज बी हैप्पी, अरे भाई कैसे पॉसिबल है कि आप हमेशा खुश ही रहेंगे, समझे? या others must be behind me and my environment should not contain my suffering. तो क्या है, अब रूल क्या है, या मतलब आई मस्ट सिक्योर फर्स्ट पोजीशन इन ऑल क्लासेस बट इट इज अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट एवरी ईयर। ठीक है, हो सकता है आप कर सकते हैं थोड़ा, लेकिन अगर ये बिल्कुल सोच के बैठ जाए और कि नहीं साहब हमें करना चाहिए और लेकिन हम पढ़ नहीं रहे, मतलब वी आर डिवोटिंग वेरी लेस टाइम इन दिस कंट्रैक्ट, तो ये इस टाइप के रूल्स या रियलिस्टिक जो है हमारे कोई वो गोल्स नहीं होना चाहिए। फिर क्रिएटिंग परसेप्शंस है, स्टूडेंट्स कैन लर्न टू टेस्ट द रियलिटी ऑफ देयर परसेप्शन rather than jump to conclusions. They can distinguish between fact and interference and make their inferences as accurate as possible. अब जैसे कि खास तौर से अगर आप मेंटल हेल्थ के रिलेशन में कहें कि तो अब साइकोलॉजिकल वेलबींग है, जैसे कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं, सोशल इंटरेक्शंस हैं, तो ये सब चीज़ें अगर पॉजिटिव होंगे तो तब तो व्हेन टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। अच्छा, ये जब क्या होती है कि these are generally learned behaviors and it can be biologically based also. So our mental health substantially impacts how we think, interact with others and deal with situations. क्या तो, तो इस तरह से है कि आप अपना परसेप्शन कैसे क्रिएट कर रहे हैं इन द आइज ऑफ द अदर्स और इन द आइज ऑफ द सेल्फ, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। फिर फीलिंग्स एंड फिजिकल रिएक्शंस है, व्हेन डिड यू स्टार्ट फीलिंग द वे। अब हम लोग अक्सर पूछते हैं कि कब शुरुआत हुई कि आपने लोनलीनेस फील करना शुरू कर दिया है, और फिर आप उसके जब कुछ बताए काउंसलिंग तो आप बताइए टेल मी समथिंग मोर अबाउट द फीलिंग। क्या जब आपको अंदर लोनलीनेस की फीलिंग अगर किसी इंसान के अंदर डेवलप हुई, और व्हेन पर्सन फील एलिनेटेड, एलिनेशन में भी फ्रॉम द सेल्फ, अपने आप से भी एलिनेशन हो सकता है, नॉर्मलेसनेस फीलिंग कहना चाहिए नॉर्म इरोजन, और दूसरी तरह तो इस तरह फिर अगेन आप क्वेश्चन कीजिए, डिस्क्राइब हाउ योर बॉडी एक्सपीरियंसिंग द फीलिंग्स, क्या आपका बॉडीली इफेक्ट क्या हुआ, स्ट्रेस हो गया, तो अब स्ट्रेस के बॉडी इफेक्ट क्या होते हैं, पेन होता है किसी को। अच्छा, और हमारे स्ट्रेस जो है अफेक्ट करता है बॉडी में तीन ट्रंक में, अपर ट्रंक ऑफ द बॉडी असर करता है, वो कैसे करता है अपर ट्रंक ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारा जो नेक के ऊपर का हिस्सा जो है वो उस पर फिर बिलो नेक अप टू द नेवल तक जो है, नाफ तक, वो हमारा मिडिल ट्रंक का था, और लोअर ट्रंक ऑफ द बॉडी लेग्स में इफेक्ट करता है। क्या आपके, तो आप उससे पूछिए हाउ योर बॉडी एक्सपीरियंसिंग दिस फीलिंग ऑफ स्ट्रेस। अच्छा, फिर आप उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करें, डू यू हैव एनी विजुअल इमेजेस दैट कैप्चर द फीलिंग, कुछ आपके अंदर दिमाग होता नहीं, बहुत से लोग कुछ चीज बता नहीं, अरे भाई आज पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है तो वो तो बिल्कुल ब्लैंकेट चीज है, क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है, तो दैट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। अच्छा, फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ इज योर मूड बीन एंड हाउ इट इज इट टुडे, आर देयर एनी अदर फीलिंग्स एंड accompany or underlying that feeling, and how do you feel here and now, how persistent is the feeling। तो अब इस फिर रेटिंग हम लोग पूछते हैं, तो आप ठीक है 0 to 10 पूछ लीजिए, यानी 10% हो रही है, 20%, 30%, 40%, 50, 60, 70, 80 and 90, how that is feeling is the strong, that is more important। तो इसी तरह से हमारी हेल्पिंग रिलेशनशिप बहुत जरूरी है इसमें। तो कनेक्शन कहते हैं कि हमारा डेवलप हो, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी रिलेशनशिप में इंसान की कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कहते हैं जब हम बात करते हैं पॉजिटिव मेंटल हेल्थ या मेंटल हेल्थ which implies the absence of mental illness, but there are times when people with good mental health
can become psychologically unhealthy as mental health and mental health they continue. अब बहुत से लोग बिल्कुल परफेक्शनिज्म डेवलप है, समझे, कि ऐसा करें और लोग भी ऐसे हों, ऐसा करें, तो वो सब पॉसिबल नहीं होता कभी कभी, समझे? तो कहते हैं कि वो भी एक समटाइम्स इट में आल्सो बिकम एज एन अनहेल्दी। तो कहते हैं कि we when we refer to the mental health as good or poor depends on how much we are doing and when it comes to these aspects of our lives। हम तो कंटिन्यूम है एक्चुअली, क्या है कि कोई भी कहे कि, तो हम जब यूज करते हैं वर्ड मेंटल हेल्थ की, तो मेंटल हेल्थ खासतौर से हम लोगों की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, फ्रेंकली स्पीकिंग। तो नो वन इज mentally healthy. It depends on the situation, or it depends on the um, context when we talk about the mental health। फिर ये तो हमने कुछ कंडीशंस बताई कि कैसे आदमी को कर रिस्पॉन्स करे। तो इसमें जैसे क्लाइंट से स्टेटमेंट कह रहे हैं, आई डू नॉट नो व्हाट इट इज, यू नो, व्हेन आई टॉक अबाउट इट फील मोर फ्लिप, इफ आई जस्ट सिट स्टिल अ मिनट feels like a great big hurt down there, instead I feel cheated। काउंसलिंग काउंसलर के रिस्पॉन्ड कहते हैं कि ऑब्जर्व करो और लिसन करो, वर्बल वोकल बॉडली कम्युनिकेशन। तो आपके अंदर क्या है, पेशेंस हो, लिसन पेशेंटली व्हाट द क्लाइंट इज posing or counseling is posing or manifesting problem। फिर कहते हैं रेजोनेट करो, फीलिंग सम ऑफ इमोशंस लाइक द क्लाइंट एक्सपीरियंसेस। तो ये आपको रिस्पॉन्स एज ए काउंसलर देना पड़े, डिस्क्रिमिनेट करो व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट टू द क्लाइंट एंड इन टर्म्स ऑफ, फिर कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेटिंग हो, चेकिंग हो आपके अंदर। तो ये सब वेज हैं फॉर द साउंड। फिर क्लाइंट का परसेप्शन क्या है ऑफ काउंसलर्स रिस्पॉन्डेंट, क्या आपके अंदर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड हो इंसान काउंसलर के अंदर। तो कहते हैं देयर आर ways of protecting oneself from physical illness। इसी तरह से मेंटल इलनेस को भी प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपके पास वेज हो सकते हैं। तो mental illness is not an ongoing process because the person could have the highs and lows, days or weeks with no mental worries are। So most people can overcome their illness if they get the proper care and treatment अगर उनके अंदर बया है। लेकिन क्या है, अगर आप बहुत सी स्टडीज देखें थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो कहते हैं almost 9 out of 10 people who experienced mental illness and also experience discrimination due to that illness। So this may be why people can be hesitant in speak about mental illness or seek treatment। तो हर कल्चर में कहते हैं कि आपके कि say for example the country like in US, where 90% agreed on mental illness stigma discrimination in the American society, or 30% they believed stigma around mental illness has decreased in the last 10 years। तो मेंटल इलनेस क्या सीरियस इशू है, मेंटल हेल्थ का और मेंटल इलनेस का। हमने ये हमने कुछ रॉजर्स क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के बेस पे बताएंगे कोई प्रोसेस कैसे हो। तो अब हमें मसला आता है कि जैसे बॉडी मैसेजेस आ रहे हैं या अटेंशन इंटरेस्ट, तो उनको कैसे एसेस कैसे किए जाए। सबसे पहले यहाँ बात होती, तो कहते हैं कि बीइंग अवेलेबल क्या है आप पास, और अडॉप्टिंग रिलैक्स्ड एंड ओपन बॉडी पोस्चर, जैसे लर्निंग लीनिंग स्लाइटली फॉरवर्ड है, यूजिंग अप्रोप्रिएट गेज कर रहे हैं आपके नहीं, यूजिंग अप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट। तो ये मेंटल हेल्थ के कहना चाहिए इन रिलेशन टू बॉडी मैसेजेस। अगर आपको कि क्या इंसान दे रहा है उसको कैसे असेस किया है वो मैं बात। फिर है कन्वे वेदर द पर्सन इज कन्वेइंग अप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशंस, यूजिंग पॉजिटिव और गुड जेस्चर्स, using touch sparingly, being sensitive to personal space and heights,
being careful about clothing and grooming, cultural consideration in how you communicate with your body, other important areas which are not I have listed here. अब क्वेश्चंस हैं जो कि इंसान को थिंकिंग से रिलेटेड होते हैं, अब क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट component or essential area component of the um, mental health. तो अक्सर क्या होता है हम लोगों के थॉट्स आते रहते हैं। अब जैसे कुछ साइंटिफिक स्टडीज हुए हैं उनमें कहा गया कि अराउंड से 60,000 thoughts enters in our mind on daily basis, and some studies reported that 10,000 thoughts are workable and the remaining are unworkable. तो अब भैया पूछिए लोगों से, काउंसलर, कि व्हेन थॉट्स डिड यू हैव बिफोर और ड्यूरिंग आफ्टर द सिचुएशन। किसी ने अगर कोई कहा कि एंजाइटी हमें बहुत रह रही है, और एंजाइटी ड्यूरिंग प्रॉक्सिमिटी ऑफ एग्जामिनेशन, अगर ये प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट के साथ आता है तो उसमें आप एक हायरार्की डेवलप कर सकते हैं कि आप कहें भाई व्हेन द एग्जामिनेशन शेड्यूल वाज डिक्लेयर्ड, or 1 week before the examination, on the day of examination, or when the student enter into the examination hall, or when the student see the examination paper. तो आप ये कब पूछिए उससे कि अगर किसी को एंजाइटी या स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो रही है, फिर क्या व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड जस्ट बिफोर यू स्टार्टेड टू फील दिस वे, व्हाट इमेजेस डू यू गेट इन द सिचुएशन. Go in slow motion through your thoughts in the situation. How frequently do you get those thoughts? When she or he acted like that, what did you think? समझे कि जब आपने सोचा एग्जामिनेशन के बारे में तो आपको कैसे कैसा फील हुआ, क्या क्या थॉट्स आए, कब आए, किस सिचुएशन में आए, समझे. तो वो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू स्पेल आउट. अच्छा, फिर विच ऑफ दोज थॉट इज द हॉट थॉट, कि जिससे आपके अंदर बहुत गर्माहट, आपके अंदर दिमाग में टेंशन पैदा हो गया. फिर व्हाट डू यू थिंक ही वाज थिंकिंग, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, किससे आपको डर, व्हाट रिसोर्सेज और स्ट्रेंथ डू यू हैव इन दैट सिचुएशन. क्या आप कौन सी स्ट्रेंथ है जिससे आप उसको डील कर सकते हैं उन सिचुएशन को, और हैव यू एवर ट्राइड टू डील विद दोस सिचुएशंस. फिर व्हाट मेमोरीज इन दिस सिचुएशन इज स्ट्रिंग अप वेयर देयर आर अदर थॉट्स और इमेजेस. The helpers या counselor can seek specific questions about self-talk, rules and perceptions. इनके आप मालूम कर सकते हैं. फिर communication actions के बेस पे देखिए कि how did you behave, what did you say, how were you communicating with your voice, how were you communicating with your body language. अब जैसे एग्जामिनेशंस के लिए, इंटरव्यू के लिए खासतौर पर अगर प्रिपरेशन आप करें तो एज ए अक्सर होता है कि इंटरव्यू के साथ या जिस लोग दोज हु आर गोइंग टू अपीयर बिफोर द सिलेक्शन कमेटी, तो दे डेवलप्ड सो कॉल्ड द स्ट्रेस. तो इन दोस केसेस यू कैन आस्क सर्टेन क्वेश्चंस कि आप उसको प्रिपेयर कीजिए, का ये पूछो कि जब होता है तो हाउ यू बिहेव, और फिर क्या कहते हो तुम अपने आप से, क्या वॉइस निकलती है, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर बॉडी लैंग्वेज, और हाउ यू रिएक्ट, और व्हाट इज द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन दैट डेवलप्स बिटवीन यू एंड व्हेन यू आर इन ए रोल. समझे कि कैसे डेवलप होता है, क्या है. अच्छा, फिर आप व्हाट हैपेंड बिफोर यू डिड दैट, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट, व्हेन डू यू. बहुत से लोग होते हैं भाई बहुत अच्छा कैरियर सब कुछ है, एग्जामिनेशन सिचुएशन आई या कुछ तो सब भूल गए, मतलब याद करके आए भूल गए क्योंकि अंडरस्टैंडिंग किया उन्होंने. फिर तो कहते हैं मतलब हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दैट वे, वेयर डिड यू एक्ट दैट वे, हाउ मेनी टाइम्स डे वीक मंथ डू यू, हाउ मेनी मिनट्स आवर्स डू यू फील ईच डे. कब आपको कैसे सिचुएशन में स्ट्रेस होता है या एंजाइटी होती या डिप्रेशन फील होता है. तो अब ये कुछ हम स्टेटमेंट्स आपको बताते हैं एज ए काउंसलर, मतलब हाउ टू डील विथ इट, कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं. तो उसके लिए कामिंग सेल्फ टॉक है, कीप काम, स्लो डाउन. अब जैसे कीप काम है तो अब इसी से तरह से रिलेटेड है हमारा पेशेंस. अब जैसे इस्लाम में बताया गया कि पेशेंस इज हाफ ऑफ फेथ.
फिर स्लो डाउन हो, रिलैक्स करो, टेक इट इजी, टेक a deep breath. So this you can take deep breath. Breathe slowly and regularly and develop the self confidence के लिए क्या है, I can manage this situation, कि हम कर सकते हैं मैनेज. फिर कूलिंग सेल्फ टॉक स्टेटमेंट, कूल इट, काउंट करो 1 to 10, बी केयरफुल, डू नॉट ओवर रिएक्ट, डू नॉट लेट माई प्राइड गेट इन द वे, I can choose not to let myself get hooked, और प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करूँ, करें. तो ये खुद से मैंने सोचा, क्योंकि देखिए कोई भी आप ट्रीटमेंट करें, चाहे काउंसलिंग करें, चाहे कुछ है, तो इन एवरी केस देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल्फ हीलिंग. क्योंकि काउंसलर क्या है, काउंसलर इज जस्ट लाइक ए गार्डनर, समझे, ध्यान रखिए, फैसिलिटेटर है, ये सजेस्ट वेज, लेकिन करना आपको ही है सब चीजें. फिर कोपिंग सेल्फ टॉक करो, कामिंग है, टेक इट इजी, रिलैक्स, कोचिंग, रिमेंबर टू टॉक एज वेल एज टू लिसन, spend time with people to whom you like, when listening show that I have understood, और retrieve mistakes का करो. यानी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेल्फ टॉक में अगर आपने कोई सपोज कुछ गुनाह भी कर लिया है कुछ है, तो यू शुड लर्न हाउ टू फॉरगिव टू द सेल्फ. सेल्फ फॉरगिवनेस आपके अंदर होना चाहिए. फिर अफर्मिंग का क्या है, कि आई एम गेटिंग बेटर एट दिस, मतलब करने से कोई भी रिलैक्सेशन जैसे करने के, प्रेयर करने के, मेडिटेशन करने के, रीडिंग स्क्रिप्चर, यानी कि कुरान पढ़ी, गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, तो हाउ यू आर फीलिंग बेटर आफ्टर दिस. क्योंकि ये क्या है, दीज आर द सर्टेन वेज थ्रू विच यू कैन डू कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग. पॉजिटिव परसेप्शंस होता है आदमी के अंदर, पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होती है. तो आजकल हम लोग काउंसलिंग में भी इनको शेयर करते हैं. और देखिए हमारे कल्चर में, खासतौर इस्लामिक उसमें, मैं तो चूंकि लिखता रहता हूँ बहुत, तो मौलाना अशरफ अली थानवी होते, ही यूज्ड टू डू इंडिविजुअल काउंसलिंग एज वेल एज ग्रुप काउंसलिंग. जैसे ग्रुप काउंसलिंग में इज्तिमा का कंसेप्ट है या सत्संग का कंसेप्ट है, तो वहाँ क्या है कि ये सब बताते हैं सबके क्या प्रॉब्लम्स चल रही. तो वो उस टाइम अपने टाइम पे बिब्लियोथेरेपी यूज किया करते थे, रीडिंग मटेरियल. लोगों से कहते थे भाई कोई भी मेंटल प्रॉब्लम्स हो तुम अपने पर्चे पे लिख के लग जाना. मस्जिद में ताक पे एक स्पेस होता है, मस्जिद में ताक बोलते हैं उसको. और वो एंड आफ्टर दैट ही यूज्ड टू प्रिस्क्राइब सर्टेन रीडिंग मटेरियल बेस्ड ऑन द इस्लामिक लिटरेचर, और से लोग पीपल गेट क्योर्ड. तो आजकल ये सब चीजें we are nowadays we are integrating the reading scriptures in the form of treatment. फिर क्या कहते हैं, कंपोजिट हो, टेक इट इजी, रिमेंबर टू टॉक एज वेल एज टू लिसन, आई एम गेटिंग बेटर एट दिस. तो हम लोग क्या है, बाय नेचर वी आर इम्पल्सिव, इम्पेशेंट है, वी कम्युनिकेट बट वी डू नॉट लिसन. So this is very important points which I wanted to share. Now I would like to tell you in brief कि स्टिग्मा क्या है लोगों का मेंटल इलनेस के बारे में, मेंटल हेल्थ पर्सन में एंड तो कहते हैं कि क्या कर सकते हैं. तो इन दिस कंटेक्स्ट मोर एजुकेशन एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड. तो अब स्टिग्मा में मेंटल हेल्थ इलनेस का में क्या है कि आप क्या, पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ डिड समथिंग टू डिजर्व इट और फेकिंग और आर बीइंग ड्रामेटिक टू नीड टू स्नैप ऑफ इट और डिजर्व सोशल सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट. तो देखिए खास तौर से हम लोगों को कन्फ्रंट करने के लिए मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का, और तो कुछ मिथ्स हैं हमारे अंदर. वो क्या है, जैसे मेंटल इलनेस है तो कहते हैं ये मिथ है हमारे अंदर कि इट कैन नॉट बी क्योर्ड. अच्छा, या टॉकिंग टू पीपल विद सुसाइडल आइडिएशन कैन बी डेंजरस, कि दूसरों से क्यों हम शेयर करें. या थेरेपी एंड काउंसलिंग टेक ईयर्स अंटिल दे हेल्प, के सालों लग जाते हैं. और द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस इज प्रेयर्स ओनली, ये भी मिथ है लोगों के अंदर.
अक्सर होता है लोग आते हैं कहते हैं भाई देखिए मैं तो प्रेयर करता हूँ, मैं रीडिंग स्क्रिप्चर भी करता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, लेकिन हमें क्यों हो गया डिप्रेशन? तो आई यूज टू एक्सप्लेन दिस कि परहैप्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ द प्रेयर। तो मैंने कुछ एनालिसिस आपके की, जैसे हम प्रेयर की एनालिसिस आपको बता रहे हैं, विच कैन लाइक पी। तो पी स्टैंड्स फॉर प्रेयर हेल्प्स इन द प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल एंड हार्ट आर रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह। ए जो है हमारे क्या, अटेंशन, इट डेवलप्स अटेंशन। वाई, ईयरनिंग, that is to you may say establish connectedness with God. E, eternal consciousness. And R, last letter R in the prayer means recovery. तो इससे उनको बताते हैं कि ये यानी कि क्या, कि क्या आप कैसे उसको डील करें। अब कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम है कि कैन वी कन्फ्रंट द स्टिग्मा अबाउट द मेंटल इलनेस। तो रिसर्च शोज दैट इफ वी आर मोर अवेयर ऑफ द मेंटली इल पीपल अराउंड अस, वी कैन गो एट अ मोर रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ मेंटल इलनेस दैट हेल्प अस टू एग्जामिन एंड चेंज अवर थिंकिंग। तो एक हमारे एंटी साइकेट्रिस्ट थे गिलासगो में, आरडी लैंग। तो उनसे स्टूडेंट ने कहा, पूछा कि आप हमेशा मतलब यू ऑलवेज टॉक अबाउट द abnormal people and the symptoms of the abnormal people. What about the symptom of the normal person? So he replied, when I will find him, I will cure him. तो अब तो प्रोटेस्ट क्या है आपके, क्या कि बहुत से लोगों अंदर होता है कि अनफेयर ट्रीटमेंट है और इंफॉर्मेशन नहीं मौजूद है भैया। तो इसके कंटेक्स्ट में क्या है, मीडिया का जो है, media can also play a vital role by educating the public and changing attitudes. The community leaders who can influence public perception of mental illness and related stigma and the process of trust whoever the mental illness. तो कहते हैं कि जब आपको अंदर कहो कि भाई ठीक है हमें मदद मिलेगी, तो हर कोई भी पोजीशन हो, कोई भी हो, चाहे डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हो, किसी तरह का सब प्रॉब्लम्स हो, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि खासतौर से हम लोग काउंसलिंग की जब बात करते हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, पर्टिकुलरली इस्लामिक काउंसलिंग में, तो हमारे अंदर कहना चाहिए 3 कंपोनेंट हमारे बहुत ज़्यादा है। एक तो देखिए फेथ का कंपोनेंट है, अकीदा जिसको बोलते हैं, अकीदा। और फिर दूसरी बात बोलते हैं हम लोग इबादा, यानी कि प्रेयर। और थर्ड कंपोनेंट कहते हैं अखलाक, कंडक्ट क्या। ये 3 चीज़ें इंटीग्रेट करती हैं। तो फेथ इन गॉड भी है और फेथ इन अदर्स है। जैसे डॉक्टर्स, व्हाई वी अप्रोच टू डॉक्टर एक्स, बिकॉज वी हैव फेथ ऑन हिम। और जहां आपका फेथ शैटर्ड हुआ, जहां आपका नहीं हुआ, तो समझे इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो वो तो अब अक्सर होता है, तो देखा जाए बड़े बड़े प्रॉफिट्स देखिए, सेजेस देखिए, सेंट्स देखिए, दे आल्सो सफर फ्रॉम प्रॉब्लम लाइक ग्रीफ एंड सॉरो, सबके साथ होता है। तो इस सिलसिले में जैसे हम अक्सर कोट करते हैं तो बताते हैं कि जैसे प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम ने, जब हम इसकी हेल्थ की बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि हेल्थ इज हिडन किंगडम, हेल्थ इज इनविजिबल लग्जरी, दोज हु आर हेल्दी they put crown on their heads and only the sick can see। और देखिए आजकल हम लोग छोटी छोटी बात में हम लोग भी फील डिप्रेस्ड एंड एंग्शियस हो जाते हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की दाऊद अलैहिस्सलाम ने कि सैडनेस ऑफ 1 hour एजेस अ मैन बाय 1 year। तो क्या है, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, वट एवर द प्रॉब्लम, वी शुड शेयर विद अदर्स। हमें दूसरों से शेयर करना चाहिए प्रॉब्लम्स अपने, न वरना क्या होता है क्या ना, तो अब हम लोग क्या है कि यार पता नहीं दूसरे लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग, ये हमारे इंडिया में खास तौर से सोशल स्टिग्मा है। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है हम लोग बल्कि कहते नहीं कि पकाते हैं, जानते नहीं कोई प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से नहीं मिलेंगे या नहीं बताएंगे भाई कि हमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे डील करें। तो इन रिसेंट ईयर्स में अगर देखें आप, तो
instead of taking drugs or medications in order to deal with problem, जैसे anxiety हो गई तो generally this psychiatrist prescribe anxiolytics, डिप्रेशन हो गया एंटी डिप्रेसेंट्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं. तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेडिकेशन rather than you should rely on counseling services in order to cope with problems, and even that you have also enough strength in order to deal with this problem through the so-called religious and spiritual approaches. मैं तो उसी पे चूंकि काम करता हूँ तो उसमें प्रेयर है, मेडिटेशन है, रीडिंग स्क्रिप्चर्स है, remembrance of God है, समझे. और तो these are the certain ways which helps you to deal with those mental health problems. So counseling services is very much needed or required whenever you encounter or face any kind of the problems, personal problem हो, social हो, vocational हो, or educational हो, or problems related to the or familiar problems हो. तो जितनी हम लोगों की स्ट्रेंथफुल अपनी अप्रोचेज हैं, और अच्छा ये भी एक चीज़ बताऊंगा कि जितनी भी रिलीजियस और स्पिरिचुअल अप्रोचेज हैं, देयर इज नो सच थिंग लाइक ए टर्मिनेशन ऑफ दोस थेरेपी. नमूना क्या होता है, 5 सेशन 10 सेशंस आर जनरली रिक्वायर्ड. लेकिन ये जो हमारी अप्रोचेज है लाइक प्रेयर है, रीडिंग स्क्रिप्चर, रीडिंग द कुरान है और गीता है और रामायण है और मेडिटेशन है, योगा है, तो वहाँ ये नहीं कभी कहते हैं कि भाई ठीक है, नाउ यू आर ओके, नाउ यू नीड नॉट टू कंटिन्यू, यू कैन टर्मिनेट योर काउंसलिंग सेशंस, यू डू नॉट नीड इट. और बाकी जितनी भी सो कॉल्ड द वेस्टर्न अप्रोचेस हैं वेयर देयर इज ए लिमिट, मैक्सिमम 10 to 20 सेशंस perhaps operate. After that we says okay, now you can terminate this. तो ये ध्यान रखिए कि ये अप्रोचेस जो हैं in the long run there is no such thing like a termination of those phases. So okay, thank you. If you want to share or ask any questions related to it, you can do it. Okay, thank you, Rafi sir. Yes, sir. Thank you very much, sir. Anyone want to ask something? Anyone? Anyone want to ask something? Anyone? क्योंकि देखिए कोई भी अप्रोच लें तो ध्यान रखिए सेल्फ हीलिंग है, कॉन्टेक्ट हीलिंग है और डिस्टेंट हीलिंग है. जैसे प्रेयर में क्या डिस्टेंट हीलिंग है, वी सरेंडर बिफोर द गॉड एंड आस्क और नीड गॉड सपोर्ट इन ऑर्डर टू डील विद द प्रॉब्लम्स, वॉट एवर द प्रॉब्लम्स यू हैव, फिजिकल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो, तो हमेशा उनसे लेते हैं. तो ये डिस्टेंट हीलिंग कहलाती है. और एक कॉन्टेक्ट हीलिंग होती है व्हेन वी अप्रोच टू डॉक्टर, काउंसलर इन ऑर्डर टू कोप विद द प्रॉब्लम्स. कॉन्टेक्ट हीलिंग होती है. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम. Sir, I have a question, if you allow me to ask. Yes, yes. Sir, in a school, how we know that a certain student needs a counseling? Because देखिए actually in the past 3 or 4 years we have been working on need of counseling need questionnaire, in which particular area the students need counseling services. तो एक बनाया है अभी, बहुत लंबा सा क्वेश्चनर भी है कि फिजिकली नीड में चाहिए, सोशल में चाहिए, इमोशनल में चाहिए, एडजस्टमेंट में चाहिए, एकेडमिक में चाहिए. तो ये एक एरियाज आइडेंटिफाई, समझे. तो वो स्टूडेंट्स का परसेप्शन, तो अब देखा गया कि ज़्यादातर एकेडमिक नीड में मेल का रिस्पॉन्स ज़्यादा आया और फीमेल के भी कुछ कहीं आए. तो बहुत सा डेटा कलेक्ट किया. तो नाउ डेज वी आर बेसिकली एनालाइजिंग दैट पर्टिकुलर पैटर्न. तो ये काउंसलिंग नीड है कि सबसे बड़े खासतौर से हमारे यहाँ आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम है कि मालूम ज़रूर करें कि भाई किसको किस एरिया में काउंसलिंग नीड चाहिए, समझे. तो इसमें खासतौर से इंटरफेरेंस सबसे बड़ा हमारे यहाँ तो आता है पेरेंट्स के एंड पे, बच्चों पे. वो सोचते कि भाई ठीक है, अरे सब चलता है, सब मालूम है, सब क्या करें. तो ये आइडेंटिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैं बताऊँ आपसे कि
कि तब तब हम कोई काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, प्रिवेंशन भी कहा जाता है भाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है, लेकिन वो अवेयरनेस नहीं है हमारे कल्चर में, खासतौर से कोई भी प्रॉब्लम्स हो जी अवेयरनेस नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है कन्वर्ट हो जाती है बेसिकली मेंटल इलनेसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। हम तो वो जो है, तो सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई जरूर कीजिए इस एरिया, फिर अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर सर्टेन मॉड्यूल्स हाउ टू डील विद दोस प्रॉब्लम्स। तब तो आप बता सकते हैं उनको। अब जैसे फिजिकल सपोज नीड में चाहिए किसी को, या कुछ है, किसी को मारा के टेंशन है, स्ट्रेस है बॉडी में, तो आप यू कैन सजेस्टिंग फॉर द रिलैक्सेशन टेक्निक, आप सजेस्ट कर सकते हैं उसको। मेंटल की प्रॉब्लम्स है, किसी को मेंटल वो उसमें चाहिए, या इमोशनल की एडजस्टमेंट, तो आप यू कैन रिकमेंड और ओके यू कैन रीड द स्क्रिप्चर्स, आप रीडिंग स्क्रिप्चर कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डील विद दोस प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब ये सब डिपेंड करता है इंडिविजुअल के फेथ के ऊपर। अगर फेथ नहीं है तो फिर कुछ नहीं, सब करते हैं। तो उसके लिए भी एक जनरल ओरिएंटेशन एक तरह का आप बता सकते हैं उसको कि भाई कोई भी प्रॉब्लम हो, या जब होती है, चाहे फिजिकल इलनेसेस हमारी होती है, तो अभी हमारे पास चूंकि डॉक्टर एक्स के ऊपर फेथ है हमारे पास, इसलिए हम उसको अप्रोच करते हैं एंड वी गेट क्योर्ड आल्सो, समझे। तो लेकिन कोई भी बीमारी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम हो, इमोशनल हेल्थ की प्रॉब्लम हो, सोशल प्रॉब्लम हो, इकोनॉमिक हेल्थ की प्रॉब्लम हो, इन्वायरमेंटल की प्रॉब्लम हो, करना आपको हील है, सेल्फ हीलिंग। तो डॉक्टर जो है सिंपल मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। अगर आप मेडिसिन नहीं लेंगे तो आप नहीं होंगे हील, करना खुद आपको। तो इंडिविजुअल इज कॉम्पिटेंट इनफ टू सर्च दोज कोपिंग प्रॉब्लम्स को सर्च करते हो। उसमें भी है, कुछ होती प्रॉब्लम फोकस्ड होती हैं, कुछ होती है इमोशन फोकस्ड प्रॉब्लम कोपिंग स्ट्रेटजी होती है, कुछ होती फंक्शनल होती हैं, कुछ डिसफंक्शनल होती हैं है कोपिंग की प्रॉब्लम। तो ये सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं लोगों के, कि अक्सर होता देखते हैं आपके प्रेयर मतलब गेम है, कोई हार गया सब, तो वो डिसफंक्शनल कोपिंग स्टडी यूज करता है कि अगर शराब पीता तो शराब ले लिया, ड्रग तो ड्रग उसने ले ली, या हमारे पास दूसरों को एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर ली। तो दीज आर द डिसफंक्शनल कोपिंग्स है। तो उसको ये बताना है कि नहीं भाई फंक्शनल कोपिंग है विच आर मोर रियलिस्टिक एनफ एंड विच डज नॉट हर्ट यू, तो वो आप वो करो। तो ये एक ध्यान रखिए, नीड आइडेंटिफिकेशन पहला प्रॉब्लम रखिए, फिर उसके बाद यू कैन सजेस्ट इन ऑर्डर हाउ टू डील विद दोस प्रॉब्लम्स। हाँ सर, एक प्रॉब्लम और है जो हम लोग देख रहे हैं सर, ये कोरोना पैंडेमिक के बाद जो बच्चे स्कूल वापस आए हैं Yeah. वो ज्यादा टॉकेटिव हैं, बहुत ज्यादा टॉकेटिव हैं। हाँ। जो है बात बहुत ज्यादा करते हैं सर। क्या आप करते हैं? तो ये इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको साइकोलॉजिकली कैसे जो हम कोप कर सकते हैं? अच्छा, वो नहीं, वो क्या करते हैं, आपने क्या बताया? हाँ सर, ज्यादा ये कोरोना से पहले मैंने जो क्लास ऑब्जर्व की हाँ तो वो बहुत खामोश रहते थे। हाँ। और बहुत मैं मिनिमम लगभग 10 to 20% जो बच्चे सर वो टॉकेटिव थे। हाँ। लेकिन जो अभी आए हैं वो सर वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव हैं। तो इसके पीछे अच्छा क्या रीजन हो सकता है सर, और किस तरह के मेजर्स जो हम ले सकते हैं इसमें से? अच्छा, अब उसमें देखिए ये एक तो कहना चाहिए वो अपने एक्सप्रेशन से या कुछ उनसे डिप्राइव्ड है रहे फॉर सर्टेन पीरियड रहे हैं, तो दे वर कहना चाहिए इनहिबिटेड हाउ टू एक्सप्रेस दोस फीलिंग, वो नहीं। तो अब वो नाउ दे आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर विद दोस फीलिंग। अब उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही कि भाई कैसे बात करें, किससे कहें या क्या करें। अब वो 2 साल लिमिट में रहे। अच्छा, उसमें क्या हो गया कि ज़्यादातर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत हो गई, इंडिविजुएशन की, इंडिविजुअलाइज सेल्फ की प्रॉब्लम्स बहुत हो गई लोगों को, कि भाई कि हम अलग थलग रहने के आदी हो गए, बिल्कुल डिस्टेंसिंग हो गई। अच्छा, और वो सब उसमें एंगेज हो गए बेसिकली, कहना चाहिए एक तरह का प्लेइंग विद वीडियो गेम्स में हो गए। तो उनके लिए क्या है कि इंडिविजुअलाइज सेल्फ बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट हो गया। अब नाउ दे आर ओवर रिएक्टिंग विद दो सिचुएशंस के। अब जब उन्हें मौका मिला तो अब वो है कि हाउ टू मैनिफेस्ट दोज थिंग्स इजली।
तो अब उसके कंटेक्स्ट में आप उनको काउंसलिंग में थोड़ा सा मतलब बता सकते हैं कि एक सर्टेन लिमिट है। अब जैसे खास तौर से अब डिसिप्लिन का कि भाई ठीक है, एक डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन चाहे बॉडी का डिसिप्लिन हो, डिसिप्लिन ऑफ माइंड हो, डिसिप्लिन ऑफ हार्ट हो, या डिसिप्लिन ऑफ इंडोरिंग रिलेशनशिप हो। तो हर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर नॉर्म्स है, रिक्वायरमेंट है। अब क्या होता है, क्लास में बात कर रहे हैं, अब उन्हें उन्हें अवेयरनेस ये है कि हमें कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। पहले अवेयरनेस था, तो उनको ऐसी बात करेंगे तो पनिशमेंट मुझे मिलेगा इस बात का। अब उन्हें ये हो गया, नहीं नहीं, तो अब वो नाउ दे आर कहना चाहिए आपके उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन। यस वेरी, ये बहुत अच्छा सर आपने। हाँ, कि वो कर रहे हैं एक्सप्लॉइट, कि वो उस चीज का फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, दे आर वेल अवेयर अबाउट इट आल्सो, उनको अवेयरनेस भी है बहुत है इस बात की कि भाई अरे चलो ठीक है, सब चलता है, या कौन क्या मेरा कर लेगा या कुछ है। तो इस टाइप की ये तो खास तौर पर उनको यही पाने की जरूरत है कि भाई देखिए, हर इंसान को कोई भी इन ऑर्डर टू अचीव एनी गोल है, आपको डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करना है, सेल्फ डिसिप्लिन। जब आप नहीं करेंगे तो आपके जूनियर जो है वो भी ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, उन्हें भी संभाल। तो आप एज ए रोल मॉडल कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं इन पर्टिकुलर सिचुएशन में फैमिली में हो या पेरेंट्स में। अच्छा, फिर ये हम लोगों की तरफ से भी फ्रेंकली बताएं, पेरेंट्स की तरफ से भी कमी चल रही है कि वी आर नॉट डिवोटिंग टू मच टाइम or telling them how to deal your personal problems and how to share with your family। उनको हम लोग अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं। उनको हम समझते हैं पर्टिकुलरली इकोनॉमिक नीड इज मोर इम्पॉर्टेंट टू फॉर देम, कि मारा पड़ा के भाई ठीक है, तो 50 रुपये मांगे, मैंने 100 रुपये से दे दिए, कि चलो ठीक है, हमें अपने सुकून से ले, लेकिन इन द लॉन्ग रन म्यूजिक तो हमें फेस करना है जब उसकी हमने उस नीड को फुलफिल कर दिया। सब तो एक सर्टेन, तो पहले ये सब डूज एंड डोंट्स वो हुआ करते थे, तो वो चीज़ें खास तौर से बताना चाहिए अवेयरनेस में कि क्या करे। तो इसी तरह से ये मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स को भी, हाउ टू प्रिवेंट दोज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, या डील अगर करें तो कैसे करें। तो उसमें हम लोग आजकल ज़्यादातर रिलैक्सेशन की बताते हैं, जैसे योगा की टेक्निक बताए या बताई, या आपको मैंने जैसे रिलीजियस स्पिरिचुअल काउंसलिंग की हमने बताई है आपको टेक्निक, तो वो बता सकते हैं कि विच कैन हेल्प यू टू डील विद दोज प्रॉब्लम्स। समझे, तो ये चीज़ों की अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। खासतौर से एजुकेशनल सेटिंग में काउंसलिंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स होना चाहिए एजुकेशनल सेटिंग में। वहाँ ये बताएं हम कि क्या क्या प्रॉब्लम है उसको, उनको कैसे डील कर सकता है, तो उससे भी दे कैन लर्न, दे मे नो हाउ टू कोप विद दोस प्रॉब्लम्स इजीली। तो एक तरह की चेकलिस्ट वगैरह है। एक तो उनसे पूछा जाए कि भाई तुमने जैसे अभी ये कर रहे हो, क्लासरूम में बात कर रहे हो, तो क्या ये इज इट ए नॉर्मल फिनोमेना और इज इट ए डिविएंट बिहेवियर, क्या है तुम्हारा, क्या परसेप्शन है उसके बारे में। समझे, फिर अगर है तो तुम कैसे डील करते हो, हाउ यू कैन डील विद सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। कि अगर आप बात कर रहे हैं क्लासरूम में, इफ यू आर डिस्टर्बिंग टू द अदर्स, है, तो हाउ यू कैन डील विद दोस प्रॉब्लम, कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सच टाइप ऑफ, तो उनका सेल्फ परसेप्शन भी मालूम, अकॉर्डिंगली वी कैन सजेस्ट सर्टेन वेज हाउ टू डील विद दोस प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच सर। ओके, सर हाँ सर एक क्वेश्चन थोड़ा मैं भी पूछना चाहूंगा। जी, सर एक्चुअली होता क्या है, कुछ बच्चों मतलब ये ऑब्जर्व किया गया है, कुछ बच्चे पढ़ने में तो बहुत अच्छे होते हैं, उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, जी, लेकिन वो राइटिंग से बहुत डरते हैं। दे डोंट वांट टू राइट द एनीथिंग। तो हाँ, नहीं नहीं, इस तरह बिल्कुल की नहीं, वो आजकल खास तौर से ये जो सो कॉल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी की जो प्रॉब्लम्स आ गई है, और ये पिछले 2-3 साल से ज्यादा हो रही है, क्योंकि उनका एक्सप्रेशन का और उनका राइटिंग स्किल वो डेवलप करने। अच्छा, पहले जो था हम लोगों के टाइम पे था बाकायदा अच्छे नंबर मिला करते थे जिनकी राइटिंग अच्छी हुआ करती थी। समझे, कि भाई उसको आधा मार्क्स एक तरह का एज ए इंसेंटिव दिया करते थे कि भाई आप देखिए आपने बहुत अच्छी राइटिंग लिखी, चाहे वो मैटर वो। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी वो हो गई बिकॉज ऑफ डिजिटल डिपेंडेंसी कंप्यूटर का। तो ये चीज हम लोगों के अंदर भी हो रही है आजकल, बड़े लोगों पे भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो रही है, हम लोगों के अंदर भी राइटिंग स्किल नहीं रह गई। और अच्छा, दूसरी बात यह है, कोई अगर मिस्टेक हो गई, कोई एरर हो गई, तो हम सोचते हैं चलो ठीक है, ये कंप्यूटर कर देगा, सही कर देगा।
कोई चीज वो, तो इसलिए वो चीज नहीं। अच्छा, वो पहले मेथड जो सो कार्ड हुआ करते थे भाई, टीचर भी क्लासरूम सिचुएशन में स्पेलिंग पूछा करते थे, बताओ इस वर्ड की स्पेलिंग क्या है वो, और तो वो सब चीजें अब खत्म हो गई। अब हमारी बिल्कुल जो है कंप्यूटर के ऊपर डिपेंडेंसी डेवलप होगी, तो जो भी होगा करेक्शन ही हो जाएगा, कुछ नहीं। तो राइटिंग स्किल तो बहुत पुअर हो रही है। अच्छा, और फिर ये जब से खासतौर से ये शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वगैरह इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसमें वो भी खत्म हो गया कि इतने वर्ड में लिख दो या कुछ है। तो वो एक तो टीचिंग के मेथड्स को भी हमें सुधारना है, मतलब लर्निंग टीचिंग मेथड्स को भी, क्योंकि अब जैसे बीएड की आप देख लीजिए, जैसे बीएड में हम जो ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो ट्रेनिंग का बेसिकली जब टीचर्स आते हैं वही, तो उसमें कोई उसका पर्टिकुलरली वो यूटिलिटी नहीं मालूम होती कि हमने ट्रेनिंग क्या ली और क्या, अगर उसी हिसाब से हम अगर प्रिपेयर करें लेसन प्लान या कुछ, तो टीचिंग ही नहीं कर सकते कभी उतने टाइम में, लिमिट में। तो ये है कि रिटन एक्सप्रेशन का तो वही, जब तक ऐसे सिस्टम्स था वो बहुत ज़्यादा था इफेक्टिव। अब ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा इनकी एक तरह के रिटार्ड हो गई ग्रोथ, तो वो भी बहुत ज़्यादा लाने की ज़रूरत है। अच्छा, और फिर ये रिटन एक्सप्रेशन क्या, वो 1 घंटे में एक क्वेश्चन या हो रहा है, या हमारे पास 50 क्वेश्चन दे दिएगा कि भाई ऑब्जेक्टिव, तो उसने वो पर्सन में अप्लाई गैस हुड टेक्निक, समझे कि कोई भी कुछ भी टिक मार कर दें हम। तो ये बहुत से मेथड हैं। तो रिटन एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है, खासतौर से उसको ये है कि एक तरह के असाइनमेंट्स रेगुलर देते रहना चाहिए डिफरेंट टॉपिक्स में, मतलब एडिशन और बियॉन्ड टॉपिक जो है सिलेबाई से रिलेटेड, ताकि देखे कि आदमी क्या लिख रहा है, क्या कर रहा है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि एक तरह का एक्सरसाइज करवाना है स्टूडेंट्स को, अगर राइटिंग सर स्किल। इसके अलावा एक एक छोटा सा और क्वेश्चन मेरे क्या? माइंड में आ रहा है। सर ये बच्चों की जो बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो गया, एडिक्टेड हो गए मोबाइल के, हाँ तो ये मोबाइल से एक बीमारी सी हो गई है, तो हाँ, ये बिल्कुल इसमें ये मोबाइल, साइकोलॉजिकल मोबाइल, थोड़ा। बिल्कुल मोबाइल एडिक्शन तो है ही। तो वो तो आजकल इंटरनेट एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, अब ये तो है ही सब। और खासतौर से इससे उनकी ग्रोथ जो है बहुत रिटार्ड हो रही। तो पॉजिटिव यूसेज उतने नहीं पर्पस से यूज कर रहे हैं मेजॉरिटी में बच्चे, जितना कि निगेटिव। तो एक सर्टेन पीरियड तक उनको एक्सेसिबिलिटी मिलना चाहिए, उसमें पेरेंटल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, बताऊँ आपसे। वो, लेकिन वो क्या करें, इनकरेज होते हैं। अब आजकल क्या हो रहा है कि अब तो देखिए रीडिंग का भी हो गया, हम लोग ज़्यादातर मेजॉरिटी में लोग रीडिंग भी नहीं कर रहे हैं, मतलब बुक से रीडिंग नहीं कर रहे हैं, सब इंटरनेट, हर चीज़ इंटरनेट पे रिलाई कर रहे हैं। जो भी मटेरियल मिल रहा है सब इंटरनेट से चाहते हैं कि भाई वो पढ़ लें। तो अच्छा, बहुत सी चीज़ें होती हैं हम लोगों में, जैसे कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, क्वेश्चनायर होते हैं, तो वो लोग बिल्कुल स्टैंडर्ड नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है उनका, कोई टेस्ट नहीं है, और लोग को मिल जाते हैं आइटम्स, व्हेन पीपल स्टार्टेड यूजिंग दोस आइटम्स, समझे, फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्चेस। तो ये है। तो वो अब एक दावत, फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, तो वो डिपेंड करता है कि कौन किस पर्पस से यूज कर रहा है। तो उसकी भी एक तरह का अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि एक सर्टेन लिमिट हो। तो आजकल क्या है, रात में भी बच्चे 12-12 1-1 बजे तक खेलते रहते हैं, कि इधर पेरेंट्स हम लोग सो जाते हैं, माँ बाप खेल रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो इंटरनेट एडिक्शन तो बहुत है इस टाइम में। अब उसके उनको पॉजिटिव यूसेज बताए जाए कि भाई देखो इसके ये फायदे हैं, वो और निगेटिव ये है, हाउ इट कैन अफेक्ट ऑन योर हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी तुम्हारी असर होगी, मेंटल भी होगी, असर होगी। तो अब वो एक्सरसाइज तो कोई वैसी है नहीं, मेंटल एक्सरसाइज उनकी, तो बस हर चीज डिपेंडेंसी है। जैसे ड्रग वाले हैं, दे बिकम केमिकली डिपेंडेंट, ड्रग्स को हो जाते हैं, इस तरह से ये लोग भी डिपेंडेंट हो जाते हैं उस पर। तो ठीक यस है डॉक्टर साहब। सैयद हयात पाशा वांट टू आस्क समथिंग ना। अच्छा अच्छा, Yes, sir. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, first of all, your lecture was very informative and wonderful, sir. जी, थैंक यू। Second, sir, as we are the educators, we have studied psychology at B.Ed level and also M.Ed level.
So can we become certified counselors? How can we become certified counselors? Is there any way? For the certified counselor, you have to pass certain courses. जैसे NCRT में, अगर if you want to become a counselor, the educational setting, तो ये 4 सेंटर्स हैं, मतलब दिल्ली का, भोपाल का, उड़ीसा का और अजमेर का, Okay, जो sir. NCRT का डिप्लोमा कहलाता है, जी सर, जो डिप्लोमा इन काउंसलिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज। जी। अच्छा, फिर कुछ मैं भी एसोसिएट हूँ डिस्टेंस सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन का, तो ये भी डिप्लोमा चलता है, जिसमें हम लोग वी यूज टू वी हैव प्रेस्क्राइब 10 कोर्सेज प्रेस्क्राइब कर सकते हैं कि ये, जिसमें 3 तो प्रैक्टिकल के हैं, गाइडेंस प्रैक्टिकम, काउंसलिंग प्रैक्टिकम, टेस्टिंग प्रैक्टिकम, और फोर्थ वन इज बेस्ड ऑन द इंटर्नशिप, और ड्यूरिंग कोरोना और पेंडेमिक पीरियड भी है प्रिस्क्राइब सर्टेन असाइनमेंट्स आल्सो। तो उसमें कहना चाहिए रफीक साहब के एक असाइनमेंट को क्वेश्चन हम लोग इंटरनेट एडिक्शन का भी दे रखा था उनको, कि क्या है, व्हाट आर द पॉजिटिव और नेगेटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद द इंटरनेट एडिक्शन, एंड हाउ यू कैन सजेस्ट टू द अदर्स टू डील विद दिस प्रॉब्लम्स। तो सर्टिफाइड कोर्सेज जो है आपके सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन के भी हैं, और इट इज अप्रूव्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और जो लोग रेगुलर करना चाहते हैं तो वो ये कोर्स कर सकते हैं आपके एनसीईआरटी जी सर। हाँ, तो उसमें स्कूल काउंसलर होंगे आप। जी सर। और बाकी ये जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वाले, तो एमए मस्ट है साइकोलॉजी में, और फिर उसके बाद जी सर। जिनको आरसीआई अप्रूव्ड, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, उससे अप्रूव जो है, जी सर। तो उसमें भी एक कोर्स है, 1 ईयर कोर्स है, रेगुलर कोर्स है चाइल्ड का, जो कि निपसेट पहले चलाया करता था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, निपसेट। तो वो अब एनसीईआरटी के कह रहे हैं, आरसीआई में भी लिस्टेड है वो कोर्स जी सर। काउंसलिंग का। तो वो तो तब आप सर्टिफाइड, तब वो एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी देते हैं। जी सर। तो अब हमारे यहाँ फ्रेंकली स्पीकिंग हमारे यहाँ तो कोई इथिकल कोई गाइडलाइंस नहीं फॉलो की जाती इंडिया में। जी सर। हाँ सर अलीगढ़ में कोई है सर कोर्स जिससे हाँ, वो जिससे ये करके सेंटर फॉर हम- डिस्टेंस एजुकेशन का है। तो मैं जी अभी तक सर। इस साल तक तो एसोसिएट था, फिर मैंने छोड़ दिया, अब और लोग देख रहे हैं उसको। तो जी पीजी सर। डिप्लोमा कहलाता है, पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो मतलब जी सर। आफ्टर ग्रेजुएशन कोई भी कर सकता हो, मतलब इस कोर्स को। जी सर। हाँ, तो वो जी उसमें 4 प्रैक्टिकल थ्योरी का कोर्स है, 4 थ्योरी में असाइनमेंट्स आपको देना है, प्रैक्टिकल में 10 to 15 क्लासेस होते हैं प्रैक्टिकल कोर्सेज में, तो वो जी आपको सर। अटेंड करना है। हाँ जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक, ओके, थैंक यू। तो ठीक है भाई रफी साहब, थैंक यू वेरी मच जी सर, जी सर, सर फॉर थैंक्स, तो गिविंग मी बहुत द रह गया पर बहुत तेज है सर, उसके बाद सर हम विदा लेते हैं। जी सर थैंक यू वेरी मच फॉर coming this wonderful or valuable uh, uh, teacher training uh, teacher training program. Respected sir, our most distinguished professor Akbar Hussain Azad, Aligarh Muslim University, Aligarh, and dear participant. First of all, I would like to propose heartily votes of thanks to our speaker, Professor Akbar Hussain, for the gracing today's teacher training program. I would like to thank our distinguished speaker, Professor Akbar Hussain Saab, for making excellent presentations and making this teachers training program interesting and meaningful. Sir, this program would not have been successful without your help. वेरी Once मच। again, I would like to thank sir. Really, sir, हाँ, this topic department. फिर कभी होगा तो हम आप लोगों को काउंसलिंग इंटरवेंशंस बताएंगे, ब्रीफ सिंपल टर्म में, कि कैसे की जाए, समझे। कभी होगा तो काउंसलिंग इंटरवेंशंस बताएंगे आपको, कि अगर फॉरगिवनेस है तो कैसे किया जाए, और तौबा कैसे की जाए, सेल्फ फॉरगिवनेस कैसे किया जाए, और प्रेयर का है Yes, तो sir. स्टेप्स क्या है। तो वो ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. Once again, I would like to thank sir. Thank you, every participant, for coming this session. See you tomorrow. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Saab. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.